Alright, Assalamualaikum everyone, and welcome to lesson number one of Science Entry Chemistry. I don't want to delay this video any further, so let's begin. But do wait till the end of the video for a very special announcement. Not a very special announcement, it's more like a reminder, but yeah. I would recommend watch the video till the very end. Alright, so question number one, without wasting any time, is say which of the following, also, one more thing. This is something that I've mentioned beforehand as well. Our lessons are going to become progressively more difficult. So if you find these questions easier, then that's perfectly fine. But that's the reason behind it. Lesson one आसान होगा और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इसको मुश्किल करते चले जाएंगे, ठीक है? So for all the people who are complaining, why are you solving such simple questions? Well, that's kind of the concept. Okay. So the first question states that which of the following substances has the highest boiling point? ठीक है, तो इसमें मीथेन given है. So let's highlight the important part. So we need to find the highest boiling point इनमें से किसका है. Now you should know that our physical properties like boiling point, they basically depend on the intermolecular forces. ठीक है, तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रही होती हैं आपकी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़. एंड इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, जल्दी जल्दी बताएं. दैट्स आयन डायपोल, राइट, विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वी हैव डायपोल डायपोल इंटरैक्शन होती है, राइट. दिस डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, एंड देन देयर लंडन डिस्पर्जन या जिनको वैन डर वाल फोर्सेस कहती हैं वो होती हैं. And then I hope you know that the trend is that as you move up, these intermolecular forces become stronger. And obviously इसका मतलब है कि फिर उनकी boiling point उतना ही ज़्यादा होगा, because in order to come over these intermolecular forces you would require more energy. So अब हम आते हैं कि हमारे पास options क्या given है. We have been given methane, which is an alkane. We have ethanol, which is a alcohol. We are given propane, which is again an alkane. And we have been given butane, which is also an alkane. Now अगर alkanes की बात करें तो alkanes are non-polar molecules, and that's why उनमें like सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो उनकी इंटरेक्शन वीक वैन डर वाल फोर्सेस से होती है. And we also know that as the size of the molecule increases, the forces become stronger. यानी अगर मैं खाली alkanes की बात करूँ तो जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती चली जाती हैं. सो इफ समवन आस्क्स मी मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो प्रॉबेबली माई आंसर वुड बी ब्यूटेन. लेकिन इन आवर ऑप्शंस वी डोंट हैव ईथेन, वी हैव एथेनॉल विच इज़ एन अल्कोहल. एंड हमारी जितनी भी अल्कोहल्स होती हैं उनके एंड पे क्या आता है. So if I just denote the carbon tree with an R and I write OH, this OH, जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, this is responsible for hydrogen bonding in alcohols. And that's why alcohols, because they're capable of hydrogen bonding, उनके अंदर intermolecular forces become way more stronger than alkanes. And that's why your answer for the first question is going to be ethanol. I hope that is self-explanatory and I hope that made sense. Let's move on to question number two. So question number two says that which of the following is an example of a Lewis acid? Now, before we move on, we need to first understand कि Lewis acid से हमारी basically क्या मुराद है. So Lewis was basically G.N. Lewis. He was a scientist, and back in 1923, he basically kind of tried explaining कि acids and bases क्या होती हैं by expanding more on the concepts of acid and base which were known at that time. So हमें पता था जी H पॉजिटिव आयन जो प्रोड्यूस करता है वो एसिड होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है वो बेस होता है. सो व्हाट लुइस बेसिकली सेड वाज कि अगर आप फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन कंसिडर करें जहाँ पर आपके पास एक H पॉजिटिव आयंस है और आपके पास फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्साइड का A9 है, ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ कि आपके पास जो ऑक्सीजन है दैट हैज़ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड वो क्या करती है, ऑक्सीजन वो डोनेट कर देती है अपना एक पेयर टू H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन बेसिकली, विच रिजल्ट्स इन दिस बॉन्ड ऑफ basically this molecule which we call as water.
तो इस रिएक्शन में क्या हुआ कि H पॉजिटिव जो आपका आयन होता है उसके पास उसके शेल के अंदर, ठीक है, उसके इस केस में तो खैर उसका फेयर शेल ही उसका वैलेंस शेल है, उसके अंदर उसके पास वैकेंसी मौजूद है टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और OH नेगेटिव यानी हाइड्रोक्सिल आपका जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, या इस केस में आई शुड से हाइड्रोक्साइड आपका जो आयन है, उसमें ऑक्सीजन के पास बेसिकली क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो डोनेट कर सकती है। And so, because in this case H positive ions are accepting electrons, they are regarded as a Lewis acid. And basically Lewis ने GM Lewis ने कहा कि कोई भी substance such as H positive ions जो accept करेगा pair of, important बात ये कि Lewis acid वो चीज़ है जो pair of non bonding electrons को accept करती है, ठीक है। This was according to him a Lewis acid. So any molecule or substance I should say that accepts a pair of non-bonding electrons, that is going to be a Lewis acid, and Lewis base इसका opposite होगा. So basically just like hydroxide anion or ion, any substance which has the capacity to donate a pair of non-bonding electrons is going to be a Lewis base. So in simple words, Lewis acid एक electron pair acceptor है और Lewis base एक electron pair donor है, ठीक है। So इसका मतलब तो ये हुआ कि basically आपके पास मतलब जो different examples की अगर हम बात करें तो हमारे पास Lewis acid कोई भी ऐसी चीज़ होगी जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल्स आ सकते हैं, ठीक है। आई राइट दोज डाउन ओवर हियर। सो Lewis acid आई राइट डाउन एंड देन आई राइट डाउन Lewis base। सो Lewis acids में आपका एक तो ये प्रोटॉन आ गया, ठीक है, जिसको हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं प्रोटॉन H पॉजिटिव बेसिकली, ठीक है। इसके अंदर आपके मेटल केटाइंस आते हैं, ठीक है। यू हैव योर मेटल केटाइंस विच have the capacity to accept electrons. For example, Al3+ एक बहुत, एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है इसकी। इसी तरीके से Fe3+ इसकी एक फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके साथ साथ आपने बहुत फेमस एग्जाम्पल्स सुनी होंगी जो आपके लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर आपकी जो वैलेंसी है वो पूरी नहीं होती, जिस तरह के आपके पास BF3 है, आपके पास AlC3 है। These are just some of those examples of molecules जो आपके लोन पेयर एक्सेप्टर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। फिर आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं तो यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दी इलेक्ट्रोफाइल्स, जिस तरह के CH3 CO पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपके कैटायोनिक स्पेक्टेटर आयंस Lewis acid होते हैं, ठीक है। आपके जो इलेक्ट्रॉन पुअर जो पाई सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, those are your Lewis acids. So like, but I can't go into a lot of that, but the concept is there, right? फिर जब हम Lewis base की बात करते हैं तो हम इससे ऑपोजिट बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो वही वाली बात है कि हमारे पास हमारे जो फॉर एग्जांपल OH नेगेटिव है वो आ गया, ठीक है, हमारी बेस आ गई। फिर इस केस में हमारे पास क्या आते हैं, हमारे जो लोन पेयर डोनर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं जो डोनेट कर सकें। वेरी फेमस एग्जांपल्स इंक्लूड अमोनिया NH3, यू हैव वाटर विच इज़ H2O, ठीक है। फिर न्यूक्लियोफाइल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही आ जाते हैं, इन्हीं को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, जिस तरह कि आपका CH3S नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो आयोनिक काउंटर आयंस होते हैं, आपके जो लाइगेंड्स होते हैं, और आपके जो इलेक्ट्रॉन रिच पाई सिस्टम्स होते हैं जिस तरह के बेंजीन। अगेन नॉट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ, इस वीडियो का पर्पस है जस्ट टू इंट्रोड्यूस दीज कॉन्सेप्ट्स। सो Lewis acid, Lewis base, आई होप दैट्स क्लियर। एंड अगर हम HCl की बात करें तो HCl इज़ अ वेरी फेमस एसिड वी नो। अगर हम एक्वस कंडीशंस में बात करें, वी नो ये पानी में जाएगा और H पॉजिटिव आयंस दे देगा एंड दे विल एक्ट एज अ Lewis acid। सो हम HCl को वी डोंट रियली कंसिडर इट एज ए Lewis, वी डोंट रियली कंसिडर इट एज ए क्या कहते हैं Lewis base। अच्छा, Lewis acid ये एक मज़ेदार बात है। क्या HCl, क्योंकि यहाँ पर खैर एक्वस नहीं लिखा हुआ, तो वैसे अगर एक्वस कहें तो इट कैन एक्ट एज अ Lewis acid, बट अगर हम बात करें HCl मोलेक्युलर की, ठीक है, तो HCl मोलेक्युलर एज अ Lewis acid एक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज HCl इज़ एन एसिड बिकॉज वो एक्वस सोल्यूशंस में जाकर
H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस करती है. बट इन द मोलिकुलर फॉर्म HCl जो है आप उसको एज अ एसिड डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग कि उनका मतलब बिकॉज अगर उनका मतलब एक्वस होता तो आई एम श्योर वो एक्वस लिखते. खैर सवाल ही मैंने बनाया बढ़िया. अगर मेरा मतलब एक्वस होता so I would have mentioned that. In that case, it you can actually classify it as a Lewis acid, but not really in its molecular form. अब अगर आप NH3 की बात करें तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि अमोनिया के पास जो होते हैं वो होते हैं. ये तो मेरे को ज़्यादा ही बना दिए. बट कहने का मकसद ये अमोनिया के पास क्या होता है. अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन होता है उसके पास आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. मैं क्या किया है सॉरी या सो क्योंकि 5th ग्रुप में होता है तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक है. तो ये इसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये वो डोनेट करने की कैपेसिटी रखता है. सो ये तो खैर हमने लिख भी दिया था कि इट्स अ लुईस बेस. वाटर भी अभी हमने इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया. ऑक्सीजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वो डोनेट कर सकते हैं. तो इट ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो ये क्या हो जाएगा आपका लुईस बेस हो जाएगी. BF3 अभी हमने बात किया. ये किस स्पेशल एग्जाम्पल है. ये आपकी लोन पेयर एक्सेप्टर वाले मॉलिक्यूल्स की एग्जाम्पल है. वाई बिकॉज बोरॉन जो होता है. ठीक है. बोरॉन बिलोंग्स टू जो आपका ग्रुप नंबर आई थिंक 3 होता है. लेट मी कंफर्म. बोरॉन बिलोंग्स टू इट बिलोंग्स टू योर ग्रुप नंबर 3. ठीक है. सॉरी माई बैड. सो बोरॉन आपके ग्रुप 3 में होता है which basically means it has only 3 electrons available in its valency to basically form bonds, right? So boron जब आपका वैसे क्योंकि बीच में आता है if it forms a covalent compound with fluorine तो इसकी vacancy इधर रह जाएगी, right? If it acts as a metal that's something different. But right now BF3 in itself is a covalent compound that we're talking about. अब बोरॉन ने फॉर्म कर लिया कंपाउंड विद 3 फ्लोरीन. ठीक है. अब क्या होगा. इसके पास वेकेंसी रह जाएगी. अगर आप इसकी वैलेंसी पूरी भी करें तो दिस इज 1 2 3 4 5 6. सो देयर स्टिल रूम फॉर गेटिंग 2 more इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑक्टेट ऑफ बोरॉन. तो वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है. दैट्स वाई we say that BF3 is a very famous example of a Lewis acid. ये कुछ बहुत famous examples हैं like Al3 plus BF3 AlCl3 जो बार बार टेस्ट होती हैं या आपका जो NH3 या H2 है. So it's best to have them memorized and the concept engraved in your mind as well. अगले सवाल पे चलते हैं. बहुत ही बेसिक सवाल है. What is the chemical formula for sodium hydroxide? Very basic. ये तो आ ही जाना चाहिए. It is NaOH. फिर हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. सो जब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे हैं अबाउट द कैपेसिटी यू कैन से और यू कैन से द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट एंड बाइंड विद इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है उसके कुछ जनरल ट्रेंड्स होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं इन द पीरियोडिक टेबल. एंड बेसिकली व्हाट आर दोस. अगर हम जनरली बात करें तो एक ऑब्वियसली बात है अगर थोड़ा सा आइडिया जहन में आने लग जाता है कि क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ एन एटम्स टेंडेंसी टू बेसिकली अट्रैक्ट एंड फॉर्म बॉन्ड्स विद इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑब्वियसली बात है कि जिस तरह हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो लेट्स से दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल. ठीक है. तो जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो यू गोइंग फ्रॉम मेटल्स हु लाइक टू गिव अप देयर इलेक्ट्रॉन्स टू नॉन मेटल्स हु लाइक टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, राइट. तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट इस तरीके से मूव कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है. एंड बेसिकली उसके पीछे रीज़न ये होती है कि आपका जो वैलेंस शेल होता है ऑफ एन एटम. ठीक है. इट इज़ लेस देन हाफ फुल इनिशियली. ठीक है. तो इट रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन देन टू गेन वन. जो आप बचपन में कॉन्सेप्ट सुनते थे कि फॉर एग्जांपल सोडियम है, सोडियम के बाहर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसके लिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना इज़ मच ईजियर देन अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे, राइट. हम ये एक बहुत फेमसली कहानी सुनते थे. तो वही वाली बात है. जो आपकी जितनी लेफ़्ट साइड पे एटम्स है उनके लिए ज़्यादा आसान है कि वो लूज़ करें इलेक्ट्रॉन्स देन वो गेन करें इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. So it is easier to pull an electron into the valence shell than to donate one अगर तो आपका valence shell is more than half full. या यूँ सोच लें
कि जब तक आपकी वैलेंसी हाफ से कम है तब तक आपके लिए जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज़ करना आसान है देन टू गेन वन। लेकिन जब आपकी वैलेंसी या वैलेंस शेल इज़ मोर देन हाफ फुल तो उसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है देन टू डोनेट। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, उसके भाई कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 हैं, तो उसके लिए एक गेन करना इज़ मोर ईजियर देन टू लूज ऑल 7 ऑफ देम, इफ़ दैट मेक्स एनी सेंस। आई होप इट डज, बिकॉज ये बहुत ही ओ लेवल या मेट्रिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। सो दैट्स वाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट आपकी इंक्रीज कर रही होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ कि जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दैट डिक्रीजेस, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न ये होती है कि आपका एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो डाउन द ग्रुप बढ़ता है। और जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है ना, और साथ साथ क्योंकि आपके एटम्स भी बड़े होते चले जा रहे होते हैं एंड दस देर इज़ अ इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, तो या कह लें कि आपका एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना बिकम्स मोर फीजिबल देन टू गेन दैम, ठीक है। In other words, your atomic number is increasing as you go down. So इसका मतलब ये होगा पॉजिटिव चार्ज बढ़े तो the capability of attracting electrons should increase. But atomic number तो बढ़े, लेकिन as we go down atomic radius भी बढ़ रहा होता है। एंड एटॉमिक रेडियस बढ़ने का मतलब ये कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है अब वो कम होता चला जाएगा ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग बिटवीन द वैलेंस electrons and the nucleus. And technically, well, this factor dominates. And जब ये factor dominate करता है तो उसकी वजह से आपकी electronegativity down the group decrease कर जाती है, ठीक है। And that's why if you want to figure out what is the most electronegative element, तो आप यूँ सोचेंगे जो चीज़ जितनी राइट साइड पे और जितनी टॉप मोस्ट पे होगी वो उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी। एंड दैट्स वाई फ्लोरीन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स दैट वी हैव। बट फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड आई होप कि आप सीधा सीधा क्लियर आउट कर सकते हैं कि सोडियम इज़ नॉट द आंसर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑब्वियसली बात है कार्बन आता है, और उसके बाद जो है हमारे पास वो आता है क्या नाम है, लेट मी एक्चुअली री राइट द, मैंने सोडियम को बहुत ऊपर लिख दिया है, बट बेसिकली आपका यहाँ पर कहीं पे आ रहा है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन, और फिर फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन आ रहा है, राइट। एंड देन सोडियम इज समवेयर इन द थर्ड रो। सो सोडियम ऑब्वियसली यू कैन सी इट्स टुवर्ड्स द वेरी लेफ्ट साइड, ठीक है, सॉरी हाँ टुवर्ड्स द वेरी लेफ्ट साइड, तो ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ मेटल, इट टेंड्स टू गिव अप इलेक्ट्रॉन्स देन टू गेन देम, तो सोडियम नहीं हो सकता। देन वी कम टू कार्बन। और कार्बन भी अगर हम इस लेफ्ट टू राइट के ट्रेंड को देखें तो कार्बन इज मोर टुवर्ड्स द लेफ्ट, and that's why carbon also cannot be the answer when you're comparing it with something like oxygen or chlorine. Now the only thing that might confuse you is if the answer is chlorine or if the answer is oxygen, ठीक है। but the thing that you should know is कि obviously बात है individual values जो है वो आप याद नहीं कर सकते, ठीक है। but what I do want you to remember is कि आप सिर्फ एटलीस्ट ये याद कर लें कि फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन ऑक्सीजन विच इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव दैन क्लोरीन, ठीक है। सिर्फ ये वाली चीज़ आपने एटलीस्ट याद कर लेनी है। एंड इफ़ यू वांट आई वुड हाईली रिकमेंड कि जो यहाँ पर आपके एलिमेंट्स आते हैं ख़ास तौर पे जो हैलोजेंस हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, एटलीस्ट इनकी कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ याद कर लें। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक ऑक्सीजन की 3.44 होती है, दैन क्लोरीन की समथिंग लाइक 3.16 और 18 इस तरह करके होती है। सो दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है इट इज़ एक्चुअली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। दिस लेफ्ट टू राइट ट्रेंड एक्चुअली डोमिनेट्स योर नीचे से ऊपर जाने वाला ट्रेंड, राइट। And वैसे भी as you can see you might be confused because chlorine is towards the rightmost but it is also one row down, तो ये दोनों effects like opposing directions में चले जा रहे हैं, तो उस वजह से हो सकता है you get confused but it is actually oxygen. And at least your top 5 most electronegative elements in the periodic table I would recommend that you memorize those, ठीक है। Alright, the question number 5 says what is the pH of a solution with a hydrogen ion concentration? This is 1 into 10 to the power of -9,
ठीक है। अब आपको ऑब्वियसली पता है पीएच का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ माइनस लॉग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर एच पॉजिटिव आयंस, राइट। अब आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, ऑल यू हैव टू डू इज पुट इट इन द फार्मूला। नाउ यू माइट बी लाइक उप्स, ये सॉल्व किस तरह करेंगे लॉग। तो आई होप यू नो कि लॉग के अंदर जो आपकी बेस होती है, ठीक है, लॉग के अंदर जो आपकी बेस होती है दैट इज़ 10, ठीक है। और जब लॉग की बेस 10 होती है, और ये एक आपका रूल होता है इन मैथमेटिक्स कि जब आपकी बेस, ठीक है, विच इज़ 10 इन दिस केस, व्हेन दैट एंड योर एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट इज सॉरी आर्ग्यूमेंट विच इज़ दिस थिंग राइट हियर, सो इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, एंड दिस थिंग राइट हियर इज़ द बेस. And there's a rule in maths that when the base and the argument are equal to one another, you can actually cancel them out. Yani कि if I write this as minus log, a 1 into 10 to the power of minus 9 is just 10 to the power of minus 9, right? Because 1 के साथ कुछ भी multiply कर दें, it remains itself. अब बेस लॉ की 10 है और आर्ग्यूमेंट भी आप देख सकते हैं कि 10 है, तो आप इनको एक्चुअली कैंसिल कर सकते हैं. और जब आप इसको कैंसिल करते हैं, यू कैन थिंक ऑफ -9 नाउ हॉपिंग टू दिस साइड, एंड नाउ यू हैव माइनस एंड -9 विच गिव्स यू 9. तो पी जो होती है वो आपकी 9 हो जाती है, ठीक है. और अगर आपको ये बात अच्छी नहीं लगती यूँ याद करना, तो मैथ्स का ये रूल होता है, डेफिनेशन ऑफ लॉग ये होता है, अगर आप डेफिनेशन याद करना चाह रहे हैं कि अगर लॉग बी ए है, so that is going to be equal to, it's the same thing as saying b to the power of x. Actually, let me write that down. Log ab, if that's equal to x, तो basically आपका जो bx होता है that is equal to the power of a. But I personally think कि ये ज़्यादा confusing हो जाएगा. This is more like saying कि जो हमारी 10 to the power of x है, जो इस केस में हम basically कह रहे हैं is basically this 10 to the power of x, this is equal to 10 to the power of -9, and so x is equal to 9. But let's not get into this, ठीक है. I think it's easier to memorize it in the way that I mentioned, ठीक है. Now let's move to question number 6. It says which of the following is a characteristic property of metals. बहुत ही आसान सवाल है. I don't even think you should have second thoughts. The answer right away is malleability. नाउ हमारे मेटल्स जो होते हैं जो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं रखते, वो हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं, उनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आफ्टर ऑल. देन दे हैव हाई नहीं, लो आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज इफ़ यू थिंक अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी, तो व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी होती है बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन from a neutral atom in its gaseous state. It's actually the opposite of electronegativity if you want to think about it. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि मेटल्स की कम होती है, तो यू कैन थिंक कि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा, लाइक इट विल बी इवन ग्रेटर, लाइक रिवर्स में चलते हैं ये लोग. बट अगेन दैट्स नॉट वेरी एक्यूरेट, बिकॉज जब आप आयनाइजेशन ट्रेंड्स देखते हैं, देर आर सम एक्सेप्शंस दैट यू नीड टू टेक इन टू माइंड. सो इट्स अ वेरी क्रूड वे ऑफ थिंकिंग. बट अगर हम लाइक कंसेप्चुअली देखें मेटल्स को एज अ होल, तो वी कैन एक्चुअली से कि उनकी जनरली लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है. एंड दे नॉट ब्रिटल इन सॉलिड स्टेट. इफ दे वर ब्रिटल तो कभी मैलिएबल ना होते हैं, ठीक है. सो रिमेंबर दैट मेटल्स बहुत ही फेमस, हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि दे हैव मैलिएबिलिटी, दैट्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी. आप उसको जिस शेप फॉर्म में तब्दील करना चाहें आप उसको कर सकते हैं. ओके, अगले 2 सवाल बहुत आसान है, आई प्रॉमिस. सो इन अ रीडॉक्स रिएक्शन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स? वेरी इजी. रीडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? जिसमें बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर करती है, ठीक है. देयर इज एन एक्सेप्टेंस एंड देयर इज अ यू कैन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू स्पीशीज, यानी एक एक्सेप्ट करती है, दूसरी डोनेट करती है. दैट्स अ बेटर वर्ड. But yeah, both oxidation and reduction happen. That's the very definition of redox reactions. Molar mass of carbon dioxide, very babyish question. Carbon, is almost 12. Oxygen is almost 16. अगर हम molar mass की masses की बात करें, तो फिर this will become 12 plus 16 plus 16, and that will give you 12 plus 32, which will give you 44. ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 44. And there you go. This ends our lesson for chemistry science entry. If you like the video, then give it a big thumbs up, subscribe to the channel, and hit the bell icon, and I will see you next time with another video. And don't forget, today is the last day to sign up for the reasoning course. And remember कि हम almost 15 lessons बनाएंगे of science entry.
जिनमें से 6 will be available on YouTube, but for the remaining, to get access to all 15 of them, only registered students for science entry will get those. So if you're interested to get your prep to the next level, covering all domains, then do consider joining the course. And then again, till the next time, Khuda.